we are going to discuss line integral of electric field and work done by electric field. So negative line integral of electric field represents the work done by the electric field on a unit positive charge in moving it from one point to another in the electric field. So when the unit positive charge is moved from one point to other in the electric field, the negative line integral of electric field represents the work done by the electric field. Means this is the work done when a unit positive charge move from point A to point B, and this is the integration of dW. Integration of dW means total work done W. So this is the negative, this is the integral. Negative integral of this one is electric field. So when a unit positive charge move from point A to point B, this negative integral of electric field represents the work done by the electric field. For example, these are the axes and this plus Q charge is placed at point O. And for example, these are the 2 points A and B. So RA and RB are the position vectors of points A and point B from origin. And this is the path between A and B. Now, this is the test charge Q node, positive test charge Q node. This positive test charge Q node moves under the electric field produced by charge Q. So charge Q produces the electric field because charge Q is much more than this test charge Q node. So that's why electric field कौन produce कर रहा है? Plus Q. And move कौन कर रहा है? This test charge Q node in the electric field produced by charge Q from point A to point B. 20 F फोर्स लगी इसके ऊपर, इसने लगाई इस प्लस Q चार्ज ने, and that is at distance R, means R is a position vector. So this plus Q charge exert force on test charge when test charge moves from point A to point B in the electric field produced by charge Q, and this charge Q node is at a distance R from the charge Q. So let Q node be test charge in place of unit positive charge. So unit positive charge की जगह हमने क्या लिया है? टेस्ट चार्ज Q node, और इसके ऊपर कौन सी फोर्स लगी? F is equal to Q node E, और E इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? दिस चार्ज प्लस Q. सो फोर्स F is equal to Q node E. Q node के ऊपर लगी X on the test charge ड्यू टू सोर्स चार्ज. कौन सा सोर्स चार्ज? प्लस Q. It is radially outward and tends to accelerate the test charge. ठीक है स्टूडेंट. सो ये फोर्स लगी, फोर्स लगने के कारण ये टेस्ट चार्ज क्या हो गया? एक्सेलरेट. टू प्रिवेंट दिस एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन नाउ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स कौन सी? माइनस Q नॉट E हैज टू बी अप्लाइड ऑन द टेस्ट चार्ज. कह रहा है प्लस Q चार्ज के कारण ये चार्ज Q नोट के ऊपर फोर्स लगी. जब ये फोर्स लगी तो ये चार्ज Q नोट क्या हो गया? एक्सेलरेट. लेकिन हमने इसको एक्सेलरेट नहीं करवाना, हमने इसको मूव करवाना है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, एंड हमें अब क्या लगानी पड़ेगी? एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स माइनस Q नोट E, ताकि ये टेस्ट चार्ज एक्सेलरेट ना हो. ठीक है स्टूडेंट. सो टोटल वर्क डन, वर्क डन किस कारण से आ गया? इस माइनस Q नोट E के कारण से. ठीक है स्टूडेंट. सो टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द टेस्ट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, पता लग गया स्टूडेंट माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि हमने इस टेस्ट चार्ज को एक्सेलरेट नहीं करवाना है. सो हमें क्या करने पड़ेंगे? फिर क्या करना पड़ेगा? वर्क डन. सो वर्क डन करना पड़ा टू प्रिवेंट द एक्सेलरेशन of test charge Q naught. So let's suppose dl is the small distance and total integration करेंगे तो क्या आ जाना है? total work done from point A to point B E dot dl. अब स्टूडेंट ये क्या फार्मूला आ गया?
अब स्टूडेंट ई डॉट डी एल, मैं आपको वर्क डन बता देता हूँ। वर्क डन क्या होता है स्टूडेंट आपका, फोर्स एफ डॉट डी एल डिस्टेंस। अब यहां पे स्टूडेंट एफ क्या है, क्यू नोट ई डॉट डी एल। और स्टूडेंट ये हमने क्यू नोट क्या लेना है, टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज। ये स्मॉल वर्क डन है व्हेन इट मूव्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल डिस्टेंस डी एल। टोटल वर्क डन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अब ये डी एल क्या है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये वेक्टर है ई डॉट डी एल। और मैंने क्या कहा था, कौन सी फोर्स लगी, माइनस क्यू नोट ई, क्योंकि हमने ये वर्क डन क्यों आया वर्क डन, ताकि हमने टेस्ट चार्ज को क्या करना है, प्रिवेंट करना है कि वो एक्सेलरेट ना हो। तो इसी वजह से यहां पे क्या, कौन सा साइन आ गया, माइनस साइन। सो क्या आ गया वर्क डन, फिर नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट, सो ये क्या आ गया, वर्क डन। सो नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट्स द वर्क डन। अब स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट 1/RB माइनस 1/RA। ठीक है स्टूडेंट, ये भी मैं आपको प्रूव करके बता देता हूं ये कैसे आया, ये वाला कैसे आया हम अभी प्रूव करते हैं। सो डी डब्ल्यू मैंने अभी आपको ये सॉल्व करके बता दिया था, क्यू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एल, एंड एफ क्या था, क्यू नॉट ई डॉट डी एल क्यू नॉट। ये क्या आ गया स्टूडेंट, ईडीएल कॉस थीटा, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अब स्टूडेंट डीएल कॉस थीटा, डीएल कॉस थीटा है हमारा डी आर, ये क्या है, डी आर। अब स्टूडेंट मैं डी आर आपको शो कर देता हूं, यही पाथ था। और फॉर एग्जाम्पल ये आपका ये आर ए था और ये आर बी, और यहां पे था आपका टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ये एंगल आ गया यहां पे थीटा। ठीक है स्टूडेंट, और ये फॉर एग्जाम्पल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है डीएल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या आ गया, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, कॉस थीटा। तो स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा आपका डी आर, ये क्या आ जाएगा डी आर, और डी आर क्या आ गया स्टूडेंट, डी एल कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये माइनस साइन, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला स्टूडेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, चार्ज क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये स्मॉल वर्क डन था, टोटल वर्क डन क्या करेंगे, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। ये हमने बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन से, और अंदर क्या रह गया स्टूडेंट आपका डी आर ओवर आर स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस क्या कौन सा है, आर ए टू आर बी। ठीक है स्टूडेंट, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। अब स्टूडेंट 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, r⁻⁻², क्या होता है फार्मूला, n+1/n+1, -2+1/-2+1। डिस्टेंस कितना है, आर ए टू आर बी। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया स्टूडेंट, प्लस हो गए। सो क्या आ गया, क्यू नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r, आर एस पर -2+1, 1/r आ गया। लिमिट्स क्या थी स्टूडेंट, आर ए टू आर बी,
पहले क्या पुट करते हैं स्टूडेंट, हायर लिमिट 1/RB माइनस लगा के लोअर लिमिट, तो ये क्या आ गया आपका वर्क डन, ये वाला फार्मूला प्रूव हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने आपको प्रूव कर दिया है। अब कह रहा है ये वाली इक्वेशन क्या शो कर रही है, दिस इक्वेशन शोज दैट वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B along any path AB in the electric field due to charge plus Q depends only on the positions of these points RA and RB के ऊपर ये आपका वर्क डन डिपेंड कर रहा है and is independent of actual path followed by A and B। इसका मतलब पाथ के ऊपर वर्क डन डिपेंड नहीं कर रहा है स्टूडेंट, इस पाथ के ऊपर वर्क डन डिपेंड नहीं कर रहा है। ये जो पाथ है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आर ए एंड आर बी, और आर ए एंड आर बी क्या पोजीशन वेक्टर्स किनके, पॉइंट्स ए एंड पॉइंट्स बी के। सो ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या शो कर रही है, दिस इक्वेशन शोज दैट दिस वर्क डन ओनली डिपेंड्स ऑन द पोजीशंस ऑफ दीज पॉइंट्स एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय चार्ज Q नॉट बिटवीन ए एंड बी। सो दैट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पाथ इंडिपेंडेंट। स्टूडेंट ये आपका कॉम्पिटिशन्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इज क्या, पाथ इंडिपेंडेंट, बिकॉज ये इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाए प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड, तो स्टूडेंट आपने ये डेरिवेशन प्रूव करनी है वहां पे। ठीक है स्टूडेंट, और जो फील्ड्स या फोर्सेस क्या हो, पाथ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, वो क्या है, कंजर्वेटिव। वो कौन सी फोर्सेस हैं, कंजर्वेटिव। और यहां पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात चल रही है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, कंजर्वेटिव, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या आ गई, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है स्टूडेंट, जैसे आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स थी, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, फॉर एग्जांपल आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, mgh, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड कर रही थी, साइड के ऊपर, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या थी, कंजर्वेटिव फोर्स, मींस ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड, मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। दिस वन इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज जीरो। दिस इज अनदर कंडीशन सेटिस्फाइड बाय कंजर्वेटिव फील्ड। अब स्टूडेंट जिनकी कंजर्वेटिव फोर्सेज होती हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड भी हो सकता है, वो क्या होता है, जीरो ओवर ए क्लोज पाथ। फॉर एग्जांपल ये हमने पाथ ले लिया, ये क्लोज पाथ ले लिया, ये जाने का, ये आने का। अब सुनिए, पाथ के ऊपर तो डिपेंड कर नहीं रहे, किनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ए एंड बी, किनके ऊपर, पॉइंट्स के ऊपर, पोजीशंस के ऊपर। फॉर एग्जांपल यहां पे वर्क डन लगा WAB, तो स्टूडेंट वापस आने में कितना लगेगा, -WAB। टोटल ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। सो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज पाथ क्या आ गया स्टूडेंट, जीरो। जितनी भी कंजर्वेटिव फील्ड्स हैं उनका लाइन इंटीग्रल क्या होगा स्टूडेंट, ओवर ए क्लोज पाथ, जीरो। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट, फॉर कॉम्पिटिशंस। सो टोटल ये क्या सिग्निफाई कर रहा है स्टूडेंट, क्लोज पाथ। ठीक है, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्लोज पाथ बिटवीन ए एंड बी। सो ओवर ए क्लोज पाथ E डॉट dl क्या आ गया स्टूडेंट, जीरो। क्या आ गया, जीरो। एंड दिस वन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लाइन इंटीग्रल ऑफ ओनली स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ ओनली स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोवर्ड। However, line integral of electric field due to moving charge is not independent of path because the field varies with time. स्टूडेंट अब ये भी पार्ट नोट करने वाला है, ओनली स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ही पाथ इंडिपेंडेंट है। ध्यान से, ओनली स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड मींस जो आपका चार्ज Q था, यहां पे O पॉइंट पे पड़ा हुआ था,
वो क्या होना चाहिए, स्टैटिक, वो मूविंग चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर वो चार्ज मूविंग हुआ तो स्टूडेंट ये नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि ये जीरो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज पाथ, ये क्लोज पाथ सिग्निफाई कर रहा है। जीरो कब होगा, पाथ इंडिपेंडेंट कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, स्टैटिक। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड मींस जो आपका चार्ज ये क्यू था वो क्या होना चाहिए, रेस्ट पे, स्टैटिक। अगर ये चार्ज मूव कर गया तो स्टूडेंट ये नॉट इक्वल टू जीरो आएगा अगर ये चार्ज मूव कर जाएगा, क्योंकि मूविंग चार्जेस क्या प्रोड्यूस करते हैं, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, फॉर एग्जांपल जाने में कुछ और वर्क डन लगा चार्ज को, आने में कोई और वर्क डन लगेगा, क्योंकि ये चार्ज जो ये वाला चार्ज है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। किसी टाइम पे किसी और पोजीशन पे है, किसी अदर टाइम पे किसी और पोजीशन आपको पहुंच गया, तो इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी वो क्या करेंगी, वेरी करेंगी। अब जब वेरी करेंगी तो स्टूडेंट आंसर जीरो नहीं आएगा। जाने और आने में इलेक्ट्रिक फील्ड्स का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, जिसके कारण कैंसिलेशन नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस वन आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट, electrostatic potential. This we will discuss in next lecture. Thanks.